हेलो दोस्तों, मजाक मीडिया इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको हमारे गांव के विलेज एक्सी बड़ी में जो मेला लगाया जाता है 31 मार्च और 18 चैत्र को, तो इस मेले के बारे में हम जो यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि ये मेला कब से मनाया जाता रहा है। और ये मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है भाई, आपको कल भी इसका दृश्य दिखाएंगे। आज हम 30 मार्च की रात को इधर पहुँचे हुए हैं, तो इधर अभी भी क्या है, पूरी रौनक लग रखी है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि ये मेला कब से लगाया जाता है और इस मेले के पीछे लगाने का कारण क्या रहा। तो ये मेला आपको भी एक बार इस पे विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो यदि आप इस बार तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे, तो अगली बार हो सके 31 मार्च डेट याद रखिएगा, तो इस टाइम आप ज़रूर पहुंचिएगा। तो एक दिन पहले ही आइएगा, क्योंकि आप 30 मार्च का जो रात का प्रोग्राम है वो आप मिस नहीं करना, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इधर। तो सबसे पहले हम आपको माइक जो हम शिंद्रपाल को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो आगे बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल जी। साडा मेला 31 मार्च हर साल नूं बड़े धूमधाम नाल मनाया जाता है। तो आ साडे बाबा जी ने दर्शन सिंह जी, इन्हां नूं पुछदे हैं, ये बहुत ही पुराने बजुर्ग ने, तो इन्हां दा इंट्रोडक्शन करते हैं। जी साडा मेला इत्थे 4 ਵਿਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਜੌੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਗਾਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਮੋਗੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਸ ਓੜੋਸ ਪੜੋਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਬੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿਕਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗੋਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਵੱਧਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ ਉਵੇਂ ਮੇਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ। ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਬੇ ਬੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਜਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਵਧਾਵਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ और मिस्त्री लगाए जाएंगे और जो भी जितना भी रुपया लगेगा ये मैं पूरा करांगा। हेलो दोस्तों, ये आपको बताते हैं कि जो दरगाह दिखाई गई है, जो ज़्यादा तरफ ऊपर दिखाना एक बार, ये इसकी छत है ना, जो वो कहते हैं कि ये रात को बना के जाते थे ना, सुबह आके देखते थे वो गिर जाती थी। ये बाबे से पूछते हैं वो क्या करिश्मा था। हाँ जी बाबा जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਬੱਲੀ ਵਾਲਾ ਛੱਤ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਤੋਂ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੱਤ। ਕਿਉਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ? ਆ ਜਾ। ਬਾਬੇ ਬੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੱਤ ਰੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਮਟ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ छत आधे ते मंजूर कर ली। यहाँ पर जो छत बनाई गई है ना, एक मिनट, जो छत बनाई गई है ना, ये गोल छत है, ये गारे से चनाई की गई। आप देख सकते हैं कि ये गारे से चनाई की गई है। ये पहले तो 3-4 बार गिर गई थी, बुजुर्ग कहते हैं, हमको तो पता नहीं, ये 3-4 बार गिर गई थी। फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने पीर जी से अरदास किया कि हमारी जो छत है वो रुक जाए, गिरे ना। फिर पीर जी ने चमत्कार किया। क्या हुआ कि रात को सपने में आया, उन्होंने कहा कि ये छत आप गारे में भी डाल दोगे ना, ये गिरेगी नहीं। वो तब से लेके आज तक ये गिरी नहीं है छत। और ये और आप बुजुर्ग आ गए हैं, उससे भी पूछते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं, इधर बुजुर्ग हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेला हमारा कब से लगाया जा रहा है और इसके ख़ास तौर पे इसकी वजह क्या रही कि ये मेला इतना आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो देखते हैं, हम इनसे पूछते हैं। हाँ जी, मैं गांव एकसी का बड़ा सुरचन सिंह सुपुत्र अवतार सिंह का लड़का हूँ। मैं इस मेले में 20 साल हो गए मेरे को यहाँ पर प्रधानगी करते हुए। मैं इस गांव का प्रधान हूँ, इस मेले में प्रधानगी करता आ रहा हूँ। ये मेरा बहुत सौभाग्य है जो मेरा पीर फकीर बाबा बल्ली वाला ये हमारा पूरा सहयोग देता है हमें। हाँ जी, मेला जो ये बाबा पीर बल्ली वाले का लगता है, ये सन 65 से हमने चालू किया था। सन 65 में पहला मेला हमने लगवाया था। तो जो ये मस्जिद हमारी यहाँ बनी थी, वो मस्जिद पहले गिरती थी और हम मानते नहीं थे। जब ये बाद में हम जब मानने लगे, हमने चैत्र की 18 को ये मेला शुरू किया। ये चैत्र की 18 को हमारा मेला चालू किया जब, तो ये कुटिया हमारी उसी जगह जहाँ बनाई हमने वहाँ ही रुक गई। फिर मेला चलना शुरू हो गया। अब तक जो मेला है ये पूरी फुल संगत से भरा जाता है। जो यहाँ पर 300-400
दुकान आती है अब। तो हम सब यहाँ पर आकर गांव वाले मिलकर लंगर बनाते हैं, लंगर बनाकर सब संगत को खिलाते हैं। और हमारे जो गांव में इस पीर बाबा बल्ली वाले की जो सेवा है, वो ये पीर हमारा सारे गांव को सलामत रखता है। हम इसको अच्छी तरह मानते हैं। जो मनोकामना हम करते हैं वो हमारी पूरी होती है। इस पीर फ़कीर ने जब से हम यहाँ पर छोटे थे, छोटों से अब बड़े 60-65 साल की उम्र हमारी होगी, हम मेला लगवाते हैं। मेरे को 65 साल हो गए हैं, मैं यहाँ पर मेला देखता हूँ। जब मैं छोटा था तो छोटा भी यहाँ पर आता था, तो मेला बड़ी खुशी से धूमधाम से हमारे बुज़ुर्ग मनाते थे। वो जो बुज़ुर्ग हमारे मनाते थे, फिर इतने कम पैसा इकट्ठा होता था तो फिर वो ये गोला वगैरह करा देते थे, कबड्डी करा दी, गोला करा दिया। गोला करा कर तो वो पैसा जितना होता था को 50 रुपया 100 रुपया देते थे उस टाइम। अब तो हमारे गांव में बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है, तकरीबन 1,00,000-2 लाख तक भी हो जाता है इकट्ठा। तो हम ये संगत के लिए बैठने के लिए कुछ देर तक अखाड़ा भी लाते हैं। अखाड़ा वगैरह लगाकर सब गांव वालों को इधर बिठा देते हैं और प्रेम से देखते हैं। शाम को 4 बजे 5 बजे जब छुट्टी होती है तो सब अपने अपने घर शांति से जाते हैं। एक बात और बहुत हमारे यहाँ है, जो शराब पीकर यहाँ आता है उसको यहाँ पर पीर फ़कीर भी हमारा नहीं बख्शता, उसको भी ये बख्शता नहीं है। यहाँ पर शराब पीना मना है। अगर शराब पीकर आ गया तो उसका कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। ये हमारे पीर बाबा का असूल है। तो अब हमारे पहले तो हमारे यहाँ शराब पीकर आ जाते थे, अब हमारे सब गांव वाले जिनको पता चल चुका है वो कोई भी नहीं या दारू पीकर नहीं आता। अब हमारा मेला बहुत अच्छी तरह बहुत मनाया जाता है। हमारे गांव के जो लड़के हैं सब, आज हम जो ये पीर बाबा बल्ली वाला सन ये मना रहे हैं, तो हमारे कम से कम भी 150-200 बच्चा है जो लड़के सब मेले में शामिल हो चुके हैं। अपना अपना नाम लिखा देते हैं, अपनी अपनी सेवा ड्यूटी सब करते हैं और बड़ी प्रेम श्रद्धा नाल मनाते हैं, दिल नाल लग कर और सेवा भी करते हैं। ये हमारे गांव का प्रोग्राम, ये हमारा पीर बाबा बल्ली वाले का ऐसा ही मेला बहुत अच्छा मनाया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इधर हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं, सुच्चा सिंह जी, तो ये मुख्य सेवादार के तौर पे अपनी भूमिका निभाते हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। जैसा कि हमारे भाई जी ने बताया मेले के बारे में, वैसे हम भी आपको कुछ बताना चाहते हैं, हम भी बताते हैं। मेरा नाम सुच्चा सिंह, पिता श्री ठाकर सिंह, जाति राय सिख। मेरे पिताजी 2013 में देहांत हो गया और वो हमें बताते थे कि हमारी ज़मीन इस पीर बाबा के नज़दीक पड़ती है, जो हमारे मुरब्बा का एक कोना यहाँ पड़ता है। तो हमें वो बताते थे कि ये पीर बाबा का जब मेला शुरू हुआ था तो यहाँ पे एक बेरी होती थी और बेरी वो पानी लगाने आते थे रात को, तो बेरी पे ऐसे जगमगा जाती थी। उस बेरी पे लाइटें निकलती थी और वो डरते नहीं थे। वो एक बार वो जब उसके पास आते थे बेरी के, तो वो बेरी बुझ जाती थी। तो कुछ दिन ऐसे देखते रहे कौतक। फिर उन्होंने एक कौतक और देखा कि एक यहाँ पे छपड़ी थी, उसमें पानी भर जाता था और पानी पीने पशु आते थे। जब पानी छपड़ी के अंदर थोड़ा पशु घुसता था तो एकदम डर कर भाग जाता था। तो
पिताजी देखते थे उस कौतों को कि एकदम इनको क्या हुआ, कैसे भाग रहे हैं पशु। तो पशु भागते थे। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे किसी देवता का कोई स्थान है। तो उन्होंने एक यहाँ पे एक जंड था छोटा सा, तो उन्होंने जंड को प्रणाम किया। उसे जंड को सलाम करके उन्होंने एक दीवा जगा दिया। एक दीवा जगाने के बाद उन्होंने उस जगह को मानने लग गए। दीवा जगाने के बाद फिर धीरे धीरे गांव वाले और भी आने लगे, और जो भी यहाँ से किसी के पशु को कोई बीमार पड़ जाता था पशु, तो यहाँ से उस स्थान से थोड़ी सी जो विभूति बोलते हैं जिसको, वो होती थी, वो उठा कर ले जाते थे। तो पशु को लगाते ही एकदम स्वस्थ हो जाता था पशु। तो इन्होंने धीरे धीरे उसके बाद यहाँ पे एक देग चावल गुड़ वाले, जैसे कहते हैं, गुड़ वाले चावल बनाया करते थे। तो गुड़ वाले चावल बनाते बनाते धीरे धीरे दुकानें लगाने लग गए, और धीरे धीरे मेले की प्रथा बढ़ती गई। और जो आज मेले की उस टाइम से आज कई गुना आगे हो चुकी है। सो अब तो मेले में बहुत दुकानें आती हैं और बहुत ही धूमधाम से मेला मनाया जाता है, और लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से गांव वाले एक परिवार की तरह तौर पर निभाते हैं भूमिका। एक परिवार जैसे होता है वैसे ही एक गांव एक है। गांव वाले एक गरीब हैं, वैसे तो गरीब हैं, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघे, कोई छोटे छोटे गरीब किसान हैं, कोई ज़्यादा ज़मीन वाला नहीं है इस गांव में। छोटे परिवार हैं, बिल्कुल छोटा गरीब किसान है। तो ये अपने कारोबार से जैसा भी इनके पास होता है, 100 होता है, 50 होता है, वो इकट्ठा करके और इस मेले में भूमिका निभाते हैं। और एक और अचंभे वाली बात है कि ये जो मेला मनाया जाता है 31 मार्च 18 चैत्र, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। जब से मेला शुरू हुआ है हमारा 31 मार्च और 18 चैत्र, 18 चैत का महीना, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। नहीं तो और तारीख आगे पीछे हो जाती है, महीना वो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये जो दिन है ये आगे पीछे नहीं हुआ। 18 चैत और 31 मार्च एक दिन ही आता है। और गांव वाले इस पीर बाबा को ऐसे भी मानते हैं कि जब कहीं बादल गरजते हैं और ओले की संभावना बन जाती है और ओला गिरने लग जाता है, तो तुरंत बच्चा गांव का यही बोलता है कि ये पीर पातशाह बाबा बल्ली वाला कृपा करो। तो तुरंत बादल ओले रुक जाते हैं। इस जितनी भी इसकी पीर पातशाह के एरिया में गांव वालों की ज़मीन है, वहाँ पे ओला बहुत कम पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। सो इससे ज़्यादा हम आप नहीं कुछ जानते। आगे हमारे भाई साहब बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी, वो आपको बताएंगे। पीर फकीर बाबा बल्ली वाले की जय। मैं अर्जुन सिंह सन ऑफ श्री गुरमुख सिंह, पूर्व सरपंच। ये मेला साढ़े दादा जी तो और पिता जी ये दसदे सी भी मेला बहुत वधिया ढंग नाल पिंड दे सहयोग नाल मनाया जाता सी, और जिन्नियां भी इत्थे मुरादां मनदे सी वो पूरियां हुंदियां सी। पहले मेला शुरुआत थोड़ा थोड़ा उस नाल वधदा गया जन सहयोग नाल। पहले कुश्तियां हुंदियां सी, कुश्तियां तो बाद फिर कबड्डी मैच, वालीबॉल मैच। उस तो बाद मेरी कम से कम उम्र 48 साल हो गई। उस तो वधा पिंड दे जन सहयोग नाल पीर बाबा दे मेला अज धूमधाम नाल मनाया जाता है। इत्थे संगत भी बहुत पहुँचती है और पूरी श्रद्धा दे नाल, और हर एक दी मुरादां, दुध पुੱਤ दे मेवे सब नूं ये पीर बाबा दिंदा है। ते उस प्रथा नूं चलदे हुए अज असी भी इस नूं पूरी श्रद्धा नाल मना रहे हैं, और पिंड दे सहयोग नाल जदों ये मेला चेत महीना 18 का जदों चेत महीना चढ़ता है, उस तो बाद मेले की ऐसी रौनक बच्चे च फैलती है, और पूरे जन धन सहयोग नाल
ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਦ ਸੁਰ ਕੋਈ ਛਿੜਦਾ ਰੂਪ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿੜਦਾ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜੋ ਫੱਕਰ ਜ਼ੁਲਫੇ ਤੇ ਖਿੜਦਾ ਤੁੰਬੇ ਤੇ ਜਦ ਸੁਰ ਕੋਈ ਛਿੜਦਾ ਰੂਪ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿੜਦਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨੱਚਦੀਆਂ तेरा इश्क नचांदा है मथा नचदिया साइया तेरा इश्क नचांदा है मथा नचदिया मथा नचदिया के मस्ताने बारे नी तेरे बदल देन के मारे नी स्टेज पे खत्म होगा है मैं उस दूसरे स्टेज पे जा रहा आ पिछे लड़का खड़ा है इन्होंने अरदास कराई हुए ये अरदास मेरा टाइम दूसरे स्टेज पे हो गया हाँ हाँ 1100 रुपए अतर सिंह उन्होंने सुखना सुखी सी भी साढ़े लड़का हो तो ऐसा लड़का हो गया कुड़ी मेरी अग की चली ते शाट पड़ गई कुड़ी मेरी अग
बिजली दी शाट वर्गी सुरदार का हीरा कीमती चट्टी गल मोर वर्गी गुरु में हिक विच वजदी मेरे अखबार मोर वर्गी तेरी पतंग मोटदा मैं बिचाना डोर वर्गी बेटा का पोता जी है मुंडा पाका वाला होवे नाले कर्मा वाला होवे मुंडा पाका वाला होवे नाले कर्मा वाला होवे सारे एहो चाहते आ सोने दे मुंडे दे जन्म दिन आपां खुशी मनावे प्यारे दे मुंडे दे जन्म दिन आपां खुशी मनावे गुलाबी ने गीत सुना दो पहला फिर हाँ जी मेरे चाहते नाल बुढ़िया इधर